दोस्तों वीडियो का टाइटल है गदर 2 शॉकिंग स्ट्रीट इंटरव्यू फ्रॉम पाकिस्तान एंड माय रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान। कैलोरीना, ये मेरे ख्याल में व्लॉग चैनल था इनका, तो गोस्वामी अब मेरे ख्याल में इंफॉर्मेटिव चैनल भी बना लिया इन्होंने, या दूसरा चैनल होगा। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। Now let me make this clear. I'm not a movie expert, but for many Indians, Gadar 2 is not just a movie. It is more than that. But perhaps for many Pakistanis, Gadar 2 is turning out to be a nightmare. Now, if you are not from India, you need to understand this. Greece versus Turkey, North Korea versus South Korea, the West versus Russia, or USA versus China. Films whose stories revolve around something controversial, or films that capitalize on animosity and rivalry between people, have their own audience worldwide. And Gadar 2, an Indian movie, shows an Indian man almost on his own thrashing quite a few Pakistanis and emerging victorious. But wait a minute, it is just for entertainment, right? Then why on earth are Pakistanis so angry? Why are they so keen to even physically hurt the actor who played the role of the hero in the movie? A video has gone viral on social media that shows how some Pakistanis are reacting to the Indian movie. I mean, it sounds quite hilarious that there are Pakistanis who actually believe that the hero in the movie, Sunny Deol, is a real-life character who visited Pakistan to thrash Pakistanis in their own homeland. And now they are upset with him. पाकिस्तान पे क्या हो रहा है? मतलब आप कह रहे हैं कि अपने लोग ही हमें मार रहे हैं, तो सनी देओल ने मार लिया तो क्या क्या होगा? हुआ? बिल्कुल सही कह रहा है। जरा यहाँ आए तो ये याद इसके लिए बहुत बढ़िया आएगा। ये मेकअप वेकअप जो करके आ रहे हैं ना, सिक्स पैक दिखा रहे हैं, सब खत्म कर दूंगा इसके में। भेजो एक बार। हम तो अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन चाहते। अभी सीमा इधर गई हुई थी। हाँ, अपनी सीमा हमारी गई है भी वहाँ पे। सीमा गई हुई थी हमारी, क्या किया उसका? कितना प्यार दे रही है वहाँ पे। अरे वो पाकिस्तान तो आ जाए जरा, उसको आने दो पाकिस्तान सीमा को ओ, क्या करेंगे? अरे पूरी आवाम मारेगी। हम इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम लड़ाई करें, ये कुछ करें। हम मोहब्बत करना चाहते हैं। हम दोनों मुल्कों में मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सनी देओल ने जो मूवी बनाई है ना, इससे हमारा दिल दुखा है भाई। Anyway, in the viral video, one Pakistani even claims that he will thrash or beat up Sunny Deol if he comes to Pakistan. So to start with, I want to say this. Pakistan and Pakistanis should stop seeing India as a rival. India has marched ahead and gone too far. Putting the nuclear bomb and army aside, many think that Pakistan's potential rivals could be Nepal, Senegal or Cambodia. But hatred for India and Hindus is very much alive in the country that was born due to otherness, mistrust and hatred. But despite all the hatred, it seems that Pakistanis depend on India for their own survival. Pakistanis need Indian medicines. Many of them have depended on the life-saving drugs from India. Many Pakistanis have even benefited from the Indian hospitals for treatments that are not available in Pakistan. And India has given a ray of hope to Pakistani patients who get treatment and love in India. Not only that, Pakistan has also received millions of dollars in aid from India. In other words, India's generosity and money has saved the lives of many Pakistanis. On the other hand, Pakistanis have invaded India and killed innocents and unarmed people using guns. How cowardly does that sound? Instead of dreaming to beat up an Indian movie actor, these so-called brave Pakistanis should fight the real enemies that surround them in their own country. Now see what is happening in Pakistani schools. Magistrates with armed police escorts are interrogating 7 to 12-year-olds on their Quran reading skills. Punishments are being handed out. A sessions judge even recommended disciplinary action against 3 school principals who were accused of paying insufficient attention to Quran teaching as a separate subject. The global community is starting to see Pakistan as a global hub of terrorism, and it has been described as a country where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. No surprise that it was Pakistan that acted as a safe haven for Osama bin Laden, who, by the way, as mentioned here, is glorified by the Pakistan leadership as a martyr. Remember, for them, Osama bin Laden is a hero. Through its terror acts on numerous occasions, Pakistan hasn't just killed Indian citizens, but also Indian Muslims. So yes, if these so-called brave Pakistanis want to fight something, they should fight the corrupt mentality that has made their country a hub for terror outfits. Yes, if these so-called brave Pakistanis want to fight something, they can fight against Shia phobia and their hatred for Muslim minorities. I mean, this country claims to be a protector of Muslims, but then see how Muslims are treated in its own land.
The bitter truth is that the idea of a Pakistani terrorist beating up or killing innocent Indians and Indian Muslims won't help Pakistan or its situation. So what can help Pakistan then? Well, invest in proper education, stop overspending on your defense, stop all activities that lead to radicalization, and start paying tribute to the real martyrs who have sacrificed their lives to save your ancestors from brutal Islamization. Know your real heroes. Learn about them. I am talking about those who you have forgotten. You won't have to go too far to remember them. Many Pakistanis can just look at their surnames. Remember, people in this part of the world lived together for centuries before many were Islamized and massacred by the invaders. So why not look at the bigger picture and fight the hatred inside you instead of dreaming to beat up Sunny Deol? See you again. चलिए जनाब, ना सिर्फ इंडियंस बल्कि फॉरेनर्स भी जानते हैं सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की हालात क्या हैं, क्यों हैं, क्या असल वजह है, क्या असल रीज़न है, क्या बिहेवियर है पाकिस्तानियों का, क्या गवर्नमेंट का बिहेवियर है, क्या हमारे तरीक़ेकार रहा है, किस तरीके से हमने कंट्री को चलाया है। ना सिर्फ इंडियंस, फॉरेनर्स भी जानते हैं, पूरी डिटेल पता है उन्हें कि यहाँ पे लोगों के रवैये क्या हैं और क्यों हैं और कब से है और क्या क्या हो चुका है। माइनॉरिटीज़ के हवाले से सबको पता है, मतलब माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है। अभी कुछ दिन पहले एक दिन आया था माइनॉरिटीज़ का पाकिस्तान में, नेशनल माइनॉरिटीज़ डे। उसके दूसरे तीसरे दिन ही तो 2-4 दिन के बाद ही वो हो गया, फैसलाबाद का चर्च वाला मामला हो गया, कराची में भी टेम्पल्स को गिरा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। अच्छा, एक और चीज़ है कि जिस तरीके से लड़का बता रहा था कि सनी देओल ने फ़िल्म बनाई, सनी देओल ने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब पहली चीज़ तो ये है कि ऐसी उस फिल्म में अगर जो चीज़ बोली गई है, जो बात की गई है, ऐसी नौबत ही कैसे आई, ऐसी नौबत, ऐसे हालात कैसे पैदा हुए, क्या वजह थी कि आज पाकिस्तान को लोग इस तरह से टोन कर रहे हैं। आज क्या वजह है कि लोग इस तरह से डायलॉग बोलेंगे फिल्म में कि पाकिस्तान अगर मौका दिया जाए तो पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। ऐसे डायलॉग बोलने की कब नौबत आएगी। और अब किसी भी ये इंटरव्यू वाला बंदा अगर किसी से भी पूछे कि आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हो, जहाँ आपकी सैलरी अच्छी हो, जहाँ आपकी अच्छा लाइफ स्टाइल हो, या जहाँ आप जाओ और अपने घर वालों के लिए अच्छे पैसे भेज सकते हो, तो हर पाकिस्तानी कहेगा, दूसरा पाकिस्तानी नहीं, हर पाकिस्तानी कहेगा कि ठीक है मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर लोग गधों की तरह पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी अपना घर नहीं चला पाते और अपनी जान को हथेली पे रख के वो यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। भले हम मर भी जाए, 100 में से 90% लोग ख़त्म हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो डंकी लगाते हैं और जाते हैं यूरोप की तरफ, तुर्की की तरफ, और ताकि हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अच्छा हो, ताकि मतलब हम रहें ना रहें। तो मतलब ये नौबत आ गई है कि अपनी जान को ख़तरे में डालकर भी पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं। जिसके पास पैसे हो तो वो तो लीगल तरीके से जा रहा होता है कहीं भी, किसी भी देश में। जिसके पास पैसे नहीं हो तो इलीगल तरीके से जा रहा होता है। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि सीमा अगर आ जाएगी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मतलब अगर कोई शख्स कहीं और अपनी मर्ज़ी से, अपनी मतलब क्या कर दिया उसने, अपनी मर्ज़ी से गई है, अगर गई भी है तो हर शख्स को अपनी आज़ादी है, इंडिविजुअल। अगर उस देश में इलीगल गई है तो वो उस देश का काम है ना कि उसके साथ जो करता है वो करे। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? हम कौन होते हैं कि किसी को मारने वाले, किसी को ख़त्म कर देने वाले, किसी को सज़ा देने वाले? यही माइंडसेट है। और मैंने भी जो बाहर जाके आउटडोर वीडियोस बनाई है, इंटरव्यू किए हैं, तो मैंने भी लोगों का अंदाज़ा लगाया है। और आप अगर कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे और कोई टॉपिक बताएंगे तो मैं जाके लोगों से सवाल करूँगा। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया, वाकई लोगों का माइंडसेट बहुत बुरी तरह सेट है, फिक्स है। इंडिया गलत है तो ये इंडिया किसी के साथ अच्छा नहीं करता, इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म होते हैं, और हमारे कंट्री के जो हालात हैं, हमारी कंट्री की जो न्यूज़ हैं, कभी भी न्यूज़ पे नहीं आएंगी। तो इस वजह से लोग अंधेरे में, अब तो थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर लोगों को आइडिया हो रहा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। गदर 2 के हवाले से एक बंदे ने फेसबुक पे लिखा कि इंडिया ने जो है वो अपना
आज़ादी हमसे हासिल की थी या अंग्रेज़ों से हासिल की थी? एक शख्स ने ये लिखा कि गदर 2 इतनी बड़ी फिल्म बनाना, पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाना, तो क्या हमसे वो आज़ाद हुए थे या फिर अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे? देखिए, एक चीज़ वो, और एक ने ये लिखा है कि इंडिया में इस फिल्म की कामयाबी की वजह ही सिर्फ ये है कि ये अगेंस्ट पाकिस्तान है। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं, ये मैं लोगों के कमेंट्स बता रहा हूँ या लोगों के पोस्ट बता रहा हूँ फेसबुक की। एक ने ये पोस्ट लगाई कि इसका मतलब अब भी इंडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान प्रोडक्ट बिकती है, अब भी इंडिया में जो अगेंस्ट पाकिस्तान अगर मूवीज़ होंगी तो वो कामयाब होंगी। तो दूसरी तरफ से इसको ये देख सकते हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत भी कह सकते हैं, अपने मुल्क से, अपने मुल्क के हवाले से अपने मुल्क की जिस फिल्म में तारीफ़ की गई है। देखिए, हर चीज़ का ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान में बैठ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देखेगा तो वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, इंडिया में बैठा हुआ बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। तो बात वो अपनी तरफ से सही कर रहा होगा, वो अपनी तरफ से सही कर रहा होगा, फ़र्क सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का होगा। और गदर 2 ने तो वाकई धमाल मचाया है, पाकिस्तान में विश्व नाइटमेयर का नाम दे दिया। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।